Welcome to the second video on the rhyme of the ancient mariner. The rhyme of the ancient mariner की सेकेंड वीडियो में आपका स्वागत है। पहली वीडियो में हमने पहली 20 लाइंस में ये देखा था कि एंशियंट मैरिनर नाम का एक पात्र है। 3 वेडिंग गेस्ट्स निकल के जा रहे हैं शादी अटेंड करने के लिए, और एंशियंट मैरिनर उन 3 में से एक व्यक्ति को पकड़ लेता है, उसका हाथ पकड़ लेता है। वो छूटने के लिए छटपटाता है, अपना हाथ झटक देता है। एंशियंट मैरिनर उसका हाथ तो छोड़ देता है, लेकिन अपनी आँखों की चमक से उसको पकड़ लेता है। जैसे हम सम्मोहित होना बोलते हैं, इस तरह से उसको पकड़ लेता है। और वेडिंग गेस्ट के पास कोई ऑप्शन नहीं है अलावा इसके कि वो चुपचाप एक 3 साल के बच्चे की तरह बैठ करके उसकी कहानी सुनता है। और वेडिंग गेस्ट अपनी कहानी शुरू करता है कि एक जहाज था। उसके बाद की कहानी हम इस वीडियो में देखेंगे। In the previous video, we have seen the first 20 lines of the poem, The Rhyme of the Ancient Mariner, in which we have seen that the ancient mariner, who is the first character introduced by Coleridge, he sees 3 wedding guests passing by, and he catches hold of one of the wedding guests, and he tries to narrate his story to him, but the wedding guest is in a hurry to reach the wedding ceremony. He tries to get out of the clutches of the ancient mariner, and he almost struggles physically to get out of it. And he shouts at him that, "Unhand me." The ancient mariner leaves his hand, but holds him with his glittering eye, as if hypnotizing him, as if exercising some supernatural power to hold him. The wedding guest has no choice except to listen to the story narrated by the ancient mariner. He sits down on a stone as quietly as a 3-year-old child and begins listening to what the ancient mariner has to narrate. And the ancient mariner begins his narration telling him that there was a ship. Here in this video, we are going to see line 21 to line 40 in continuation with the previous video. इस वीडियो में हम लाइन 21 से 40 तक देखेंगे, जो कि पिछली वीडियो के निरंतरता में है। Let's see the text first. The ship was cheered, the harbor cleared. Merrily did we drop below the kirk, below the hill, below the lighthouse top. The sun came up upon the left, out of the sea came he, and he shone bright, and on the right went down into the sea. Higher and higher every day, till o'er the mast at noon, the wedding guest here beat his breast, for he heard the loud bassoon. The bride hath paced into the hall,
red as a rose is she, nodding their heads before her goes the merry minstrelsy. The wedding guest, he beat his breast, yet he cannot choose but hear, and thus spake on that ancient man, the bright-eyed mariner. Here we see that the wedding guest sits down on a stone and begins listening to the narration of the ancient mariner. The ancient mariner continues his story thus. He says, "The ship was cheered, the harbor cleared, merrily did we drop." He tells him that we were moving from the harbor and people were cheerfully seeing us off. The harbor was cleared, a clear pathway was made for our ship to take off. एंशिएंट मैरिनर बताता है कि हम हार्बर से, बंदरगाह से रवाना हो रहे थे। हार्बर को बिल्कुल साफ किया गया था ताकि हमारा शिप आराम से निकल कर जा सके। Merrily did we drop below the kirk, below the hill, below the lighthouse top. वो बताता है कि हमारा जो जहाज था, पानी का शिप, वो बहुत खुशी से वहाँ से रवाना हुआ। Below the kirk, below the hill, below the lighthouse top. जैसे ही हमारा जहाज़ रवाना हुआ तो वहाँ पर हम निकल करके गए। पास में कर्क था, चर्च था, पहाड़ियाँ थीं, लाइट हाउस था। वहाँ से हम आराम से लोगों के खुशी खुशी हमें रवाना करने के माहौल में हम निकल कर चले गए। द सन केम अप अपॉन द लेफ्ट, आउट ऑफ द सी केम ही। हम थोड़ा आगे चले। ये पोएम एक नैरेशन है और एंशिएंट मैरिनर जो नैरेशन सुना रहा है उसमें एक फैंटेसी का एलिमेंट है, एक इमेजिनेशन का एलिमेंट है, जिसका साइंटिफिक ट्रुथ से, वैज्ञानिक सत्य से कोई सरोकार नहीं है। यहाँ वो बोलता है, द सन केम अप अपॉन द लेफ्ट, आउट ऑफ द सी केम ही। थोड़ा आगे चले, हमने ये देखा कि हमारे लेफ्ट साइड से सूर्य निकलकर आ रहा है। और सूर्य कहाँ से निकला? समुद्र के अंदर से। अब यहाँ क्योंकि ये फैंसी पर बेस्ड पोएम है, इमेजिनेशन पर बेस्ड पोएम है, इसलिए यहाँ हम लोग साइंटिफिक ट्रुथ बिल्कुल नहीं देखेंगे। सूरज था और वो समुद्र में से निकलकर आ रहा था। एंड ही शॉन ब्राइट एंड ऑन द राइट वेंट डाउन इनटू द सी। एंड ही शॉन ब्राइट, और सूर्य जो था वो बहुत तेज चमक रहा था। यहाँ पर उसने सूर्य को ही बोला है, सूर्य का मानवीकरण किया है। एंड ही शॉन ब्राइट एंड ऑन द राइट वेंट डाउन इनटू द सी। लेफ्ट साइड से सूर्य निकल करके आया और तेज चमकता हुआ राइट हैंड साइड को जा करके वापस समुद्र में ही डूब गया। Higher and higher every day till over the mast at noon. हम जैसे जैसे अपनी यात्रा को आगे बढ़ाते जा रहे थे, रोज हम ये देखते जा रहे थे कि every day the sun went on rising higher and higher. हर रोज सूर्य और ऊपर उठता चला गया। Till over the mast at noon. And it happened that during noontime, the sun would be just above the mast of our ship. दोपहर के समय सूर्य हमारे शिप के
जो बीच में एक डंडा लगा होता है जिस पर सेल टिकी हुई होती है, मस्तूल जिसको बोलते हैं, उसके ठीक ऊपर, हमारे सिर के जस्ट ऊपर सूरज दोपहर में हुआ करता था। द वेडिंग गेस्ट हियर बीट हिज ब्रेस्ट फॉर ही हर्ड द लाउड bassoon. Now, when the story is being narrated by the ancient mariner, on the other hand, a wedding ceremony is going on just nearby, and the wedding guest, he hears the loud sound of a musical instrument. So he has to go. He has actually come to attend that wedding ceremony. Unfortunately, the ancient mariner has sort of captivated him, sort of held him tight by his glittering eye. So he is struggling hard to get out of the situation. वेडिंग गेस्ट ने अचानक से सुना कि एक वाद्य यंत्र की जोर से आवाज आ रही है। उसे ध्यान आता है कि वो शादी अटेंड करने आया है और शादी अटेंड नहीं करके वो यहाँ बैठ गया है और उठ के जाना चाहता है, जाने के लिए छटपटा रहा है। वो अपना ब्रेस्ट बीट करता है, वो अपनी छाती पीटता है, यानी वो छटपटाता है जाने के लिए, लेकिन वो नहीं जा पा रहा है। The bride hath paced into the hall, red as a rose is she. दूर से वेडिंग गेस्ट ये देखता है, जो हमें एस.टी. कोलरिज यहाँ पर नैरेशन के थ्रू बता रहा है। The bride hath paced into the hall. Coleridge, in the course of his narration of the poem, tells us what the wedding guest is seeing. Through the eyes of Coleridge, we can see what the wedding guest has seen. The bride hath paced into the hall. दुल्हन शादी की सेरेमनी के लिए हॉल में आ चुकी है। रेड एज अ रोज इज शी, बहुत खूबसूरत दुल्हन है, लाल गुलाब की तरह, सुर्ख लाल दुल्हन है। नॉडिंग देयर हेड्स बिफोर हर गोस द मेरी मिनिस्ट्रलसी, एंड द मिनिस्ट्रलसी, द अटेंडेंट्स ऑफ द वेडिंग, the attendants of the bride, they are moving with her with their heads nodding down in ceremony. यहाँ औपचारिकता के कारण, एक अच्छे संस्कार के कारण, ब्राइड के साथ जितने भी उसके अटेंडेंट्स हैं वो बहुत आदर पूर्वक उसके साथ चल रहे हैं, सम्मान का भाव लेकर के चल रहे हैं। ऐसा सीन वेडिंग गेस्ट को दूर बैठ करके दिखाई दे रहा है। द वेडिंग गेस्ट ही बीट हिज ब्रेस्ट, येट ही कैन नॉट चूज बट हियर। नाउ द वेडिंग गेस्ट इज वेरी कॉन्शियस ऑफ द रीजन ऑफ हिज कमिंग हियर। ही नोज ही हैज टू गो, ही वॉन्ट्स टू गो, but unfortunately he is held tight by some sort of energy, by some sort of force that he cannot break out and move away from this situation. वेडिंग गेस्ट को मालूम है कि वो यहाँ विवाह समारोह में आया है। उसे सामने शादी की गतिविधियां दिख रही हैं, दुल्हन दिख रही है और वो जाना भी चाहता है, लेकिन कुछ है जो उसको वहाँ बहुत ज़ोर से बांधे हुए है और वो छूट करके भाग नहीं पा रहा है। जिस मंतव्य से वो यहाँ आया है, जिस कारण से वो इस वेडिंग सेरेमनी को अटेंड करने आया है, वो उस काम के लिए तो जा ही नहीं पा रहा है। द वेडिंग गेस्ट ही बीट हिज ब्रेस्ट, वो इतना छटपटा जाता है कि वो अपनी छाती पीटने लगता है। येट ही कैन नॉट चूज बट हियर, बट देयर इज नो ऑप्शन बिफोर हिम। He cannot exercise his own choice. He has no choice. He just has to listen to the story of the ancient mariner. वो चाहकर भी वहाँ से नहीं हिल पा रहा है। उसके सामने कोई और विकल्प ही नहीं है।
अलावा इसके कि उससे एंशंट मैरिनर के पास बैठकर उसकी कहानी सुननी ही होगी. एंड दस स्पेक ऑन दैट एंशंट मैन द ब्राइट आइड मैरिनर. एंड दिस इज हाउ द एंशंट मैरिनर बिगैन स्पीकिंग फर्दर. और इस तरह से एंशंट मैरिनर ने आगे अपनी बात कहनी शुरू कर दी. तो हम ये देखते हैं कि एंशंट मैरिनर वेडिंग गेस्ट को बिठा करके उसे अपनी बात पूरी सुना रहा है और वेडिंग गेस्ट आधा उसके वजह से बंधा हुआ है और उसके पार्शियल सेंसेस उसे समझा रही हैं कि वो यहाँ किस काम से आया है और उसे कहाँ होना चाहिए. Let us see a few words and phrases that are important to understand this part of the poem. लाइन 21 से 40 तक जो हमने पढ़ी हैं उनको समझने के लिए कुछ लाइन्स और फ्रेजेस बहुत इंपॉर्टेंट हैं, वो देख लेते हैं. हार्बर, द एंकरेज ग्राउंड फॉर शिप्स टू पुट स्टे. बंदरगाह, पानी के जहाज के खड़े होने का स्थान. मेरीली, हैप्पीली, इन अ जॉयफुल मूड. प्रसन्नतापूर्वक, उत्साहपूर्वक. कर्क, अ स्कॉटिश चर्च. पूजा स्थल या गिरजाघर. लाइट हाउस, अ टावर विद लाइट that gives warning to ships. जहाज़ों को सतर्क करने के लिए बनाए गए प्रकाश युक्त ऊंचे मीनार. मास्ट, फ्लैग पोल, फ्लैग स्टाफ, अ वर्टिकल स्पा फॉर सपोर्टिंग सेल्स. मस्तूल, खंबा, पानी के जहाज पर बना हुआ खंबा. He, the sun has been personified and shown as a robust and wonderful creation. यहाँ ही शब्द का प्रयोग करके कोलरिज ने सूर्य का मानवीकरण किया है और उसे एक विशाल ऊर्जावान प्रतीक के रूप में प्रस्तुत किया है. Beat his breast, got agitated, showed restlessness. छाती पीटनी शुरू कर दी, विचलित हुआ. इन पंक्तियों में हमने ये देखा था, 2 बार ये देखा था कि वेडिंग गेस्ट जैसे ही बेसून की आवाज़ सुनता है, वेडिंग गेस्ट जैसे ही दुल्हन के आने का सीन देखता है, वो इतना परेशान हो जाता है, उसे याद आता है कि वो यहाँ किस काम से आया है. अपने मंतव्य के कारण वो वहाँ से उठ के जाना चाहता है, लेकिन वो नहीं जा सकने के कारण बहुत परेशान होकर के अपनी छाती पीटना शुरू कर देता है. बार बार बीट हिज ब्रेस्ट बोलने के पीछे कोलरिज का ये मंतव्य है कि वो हमें बताए कि एंशिएंट मैरिनर के हिप्नोटिज्म में या उसकी ग्लिटरिंग आई के इफेक्ट में कितनी बात थी, कितनी शक्ति थी कि वो वेडिंग गेस्ट चाहकर भी उसके हाथ के जकड़ से तो निकल गया, उससे जोर से बोला, उसने हाथ तो छोड़ दिया, लेकिन उसने अपनी आंखों से उसको बांध लिया और वो जो आंखों से बंधा हुआ था वेडिंग गेस्ट, वो छूट करके नहीं निकल पा रहा है, इसलिए वो अपनी छाती पीट रहा है. बेसून, अ डबल रीड म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट. वाद्य यंत्र, अलगोजा. पेस्ट, वॉक्ड, मार्च्ड, चहलकदमी करने लगा. बेचैनी में जब हम चलते हैं तो चहलकदमी होती है. मिनिस्ट्रल्सी, a troupe of minstrels, folk singers or singers in the church. लोक गायक, गिरिजाघर में गीत गाने वाले गवैये. स्पेक,
used for spoke, uttered or talked. बोला, प्राचीन अंग्रेजी की शैली में स्पेक प्रयुक्त होता है किसी भी बात के बोले जाने के लिए। ये पुरानी इंग्लिश का एक शब्द यहाँ पर कोलरिज ने यूज़ किया है, क्योंकि इसने बहुत सुपर नेचुरल इफेक्ट क्रिएट करने की कोशिश की है, इसलिए सीन्स का चयन और वोकैबुलरी का चयन इसने उसी आधार पर किया है। दिस वॉज द सेकेंड वीडियो ऑन द राइम ऑफ द एंशियंट मैरिनर, लाइन्स 21 to 40. Further on, we will see line 41 onwards in the next video. इस दूसरे नंबर के वीडियो में हमने लाइन्स 21 से 40 तक देखी हैं, कंटिन्यूशन में है। इसके बाद वाली वीडियो में हम लाइन 41 ऑनवर्ड्स देखेंगे। आप सारी वीडियोस ध्यानपूर्वक सीरीज में देखें। काइंडली व्यू ऑल द वीडियोस इन द प्रॉपर सीरीज। थैंक यू, धन्यवाद।